علی رینگتا ہوا ہر مجاہد کے پاس گیا۔ سب کے پاس گنتی کی چند گولیاں باقی تھیں۔ اس نے سب مجاہدین کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے کہا تاکہ نئی صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا جا سکے۔ ایک جگہ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے بم کے پھٹنے سے بہت بڑا گڈھا بنا ہوا تھا۔ سب مجاہدین وہاں اکٹھے ہو گئے۔ علی نے سب سے ایک دفعہ پھر پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ بوڑھے مجاہد نے کہا کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مرنا باعث فخر بھی ہے اور آسان بھی۔ گرفتاری کے بعد جیل میں جو تشدد ہوگا اس کا تصور بھی خوفناک ہے اور وہاں کی موت بھی بہت تکلیف دہ ہوگی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جیل کے بجائے یہاں کی موت قبول کی جائے۔ سب مجاہدین نے اس سے اتفاق کیا۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ جن حالات میں ہم گھرے ہیں ہمارے لیے نئے نہیں اور اللہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ جب گردیز جیل میں روسی مجھے موت کی طرف لے جا رہے تھے تو اللہ نے گاڑی کو زندگی کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ پھر جب ہم غار میں پھنسے تو اللہ نے ہمیں وہاں سے بھی بے بسی کی موت سے بچا لیا۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجاہدین کو مزید تسلی دینے کے لیے علی نے کہا، مجھے یاد آیا کہ میرے دادا جان نے بتایا تھا کہ وہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے مجاہدین میں شامل تھے۔ ایک جگہ انگریز فوج نے انہیں محاصرے میں لے لیا۔ اسلحے کے ساتھ ساتھ سامان خوردنوش بھی ختم ہو گیا، لیکن مجاہدین نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی۔ دعا کے تھوڑی دیر بعد زبردست طوفان آیا اور انگریزی فوج پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پتھروں کی اس بارش سے کئی فوجی زخمی ہوئے اور کئی مارے گئے اور باقی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس لیے دوستو آؤ ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ یہ واقعہ شمالی وزیرستان میں خیبر شریف کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ پھر سب مجاہدین اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہمیں موت کا غم نہیں، اس لیے کہ تیرے اپنے ارشاد کے مطابق شہادت سے بہتر کوئی موت نہیں، لیکن ہم اس مشکل وقت میں جہاد جاری رکھنے کے لیے تجھ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو ہماری اسی طرح مدد کر جس طرح تو نے ہمارے بزرگوں کی مدد کی، جس طرح جیل میں مدد کی، جس طرح غار میں مدد کی۔ اے اللہ دشمن کو اسی طرح تباہ کر دے جس طرح تو نے ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ کیا۔ اے اللہ ہمیں اس مشکل وقت میں استقامت اور صبر عطا فرما۔ دعا کے بعد سب مجاہدین نے سکون محسوس کیا۔ علی دوربین لگا کر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کے قریب دو ان پھٹے بڑے بڑے بموں پر پڑی۔ اس نے دوربین عبد الرحمن کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ بم ہی ہے نا؟ عبد الرحمن نے کہا کہ ہیں تو بم ہی، مگر ان سے ہمیں کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کو بلاسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا دشمن کا پورا کانوائے تباہ نہیں ہو جائے گا؟ علی نے کہا مگر ہم ان کو بلاسٹ کریں گے کیسے؟ جہاز سے گرنے کے بعد تو وہ پھٹے نہیں، یہاں ہمارے سوچنے سے کیسے پھٹ جائیں گے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ علی نے کہا کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی بندوق سیدھی کی اور بم کا نشانہ لینے لگا ہی تھا کہ نیچے سے پھر میگا فون پر آواز آئی، صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم فائر کھول دیں گے۔ چند منٹ اور انتظار کر لو، میرا اللہ تمہیں دوزخ کے فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہے، علی نے پکار کر کہا۔ دوسرے مجاہدین نے علی کو ٹوکا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب تو دشمن کو ہماری جگہ کا علم ہو گیا ہے، ایک ہی گولہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ میرے ساتھیوں فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ دشمن کو تباہ کرنے والا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ دونوں ان پھٹے بم دشمن کے کتنے قریب پڑے ہیں اور اللہ نے ہماری ہی مدد کے لیے انہیں وہاں اس حالت میں رکھا ہے۔ علی نے مجاہدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی نے بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ روسیوں کے نیچے سے آواز آئی، ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں نہ تمہارے فرشتوں کو، اگر تمہارا کوئی خدا کہیں موجود ہے تو آج اسے بھی بلا لو، تمہارے ساتھ ساتھ آج اسے بھی گرفتار کر کے لے جائیں گے یا پھر اسے بھی تمہارے ساتھ ہی ختم کر دیں گے۔ علی کو روسیوں کی اس گستاخی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بلند آواز سے روسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چند لمحوں بعد تم میرے خدا کو بھی مان لو گے اور فرشتوں کو بھی دیکھ لو گے، اور تم جو میرے خدا کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں ملنی ہی والی ہے۔ علی نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ میں نے تیرے ہی بھروسے پر شیطان کے
पुजारियों को चैलेंज किया है, तू ही मेरी इज्जत रखने वाला है। उसके बाद उसने सूरतुल फील पढ़ी और बम का निशाना लेकर गोली चला दी। पहली गोली खता गई मगर अली मायूस न हुआ। उसने फिर अल्लाह से दुआ की और गोली चला दी मगर दूसरी गोली भी खता गई। उधर दुश्मन ने फायर खोल दिया और गोले मुजाहिदीन के इर्द गिर्द गिरने लगे। अली ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और तीसरी गोली चलाई। तीसरी गोली ठीक निशाने पर लगी मगर बम न फटा। अली के पास अब मजीद कोई गोली न थी। तीसरी गोली के बेअसर हो जाने के बाद भी वो मायूस न हुआ। साथ ही मुजाहिदीन ने कहा कि यहाँ से निकलने की कोशिश करें, हम में से जितने भी बचकर निकल जाएं अच्छा है। अली ने कहा कि बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं, हमारे सामने मौत है या फिर गिरफ्तारी। अली ने अब्दुर्रहमान की क्लाशनकोफ ली और बम को ब्लास्ट करने की एक और कोशिश करने लगा। एक दफ़ा फिर उसने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा और गोली चला दी। गोली न सिर्फ निशाने पर लगी बल्कि बम इस जोर से फटा कि कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। अली ने दूरबीन लगाकर देखा तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक धुआं और गर्दो गुब्बार था या फिर धमाकों की जबरदस्त आवाजें थीं। दुश्मन की तरफ से गोलाबारी बंद हो चुकी थी। हर मुजाहिद बारी बारी दूरबीन लगाकर नीचे देख रहा था। कुछ देर बाद गर्दो गुब्बार हटा तो नीचे का मंजर कुछ साफ हुआ। दुश्मन के टैंकों और गाड़ियों का मलबा बिखरा पड़ा था और कई गाड़ियों को आग लगी हुई थी। अली ने मशवरे के बाद नीचे जाने का फैसला किया। हालात का जायजा लेते हुए मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हुए। नीचे उतरकर उन्होंने मुख्तलिफ पोजीशन संभाल ली। अली ने एक जलती हुई गाड़ी की ओट से ऐलान किया कि जो रूसी भी जिंदा बचा है हाथ उठाकर सामने आ जाए। थोड़ी देर में मुख्तलिफ जगहों पर छिपे हुए कई रूसी हाथ उठाए बाहर आ गए। अली ने आवाज़ें देकर मुजाहिदीन को मुख्तलिफ पोजीशनों पर जाने को कहा। अब्दुर्रहमान और दुर्वेश खान से कहा कि तुम तमाम रूसियों के हाथ पुष्ट पर बांध दिए जाएं। अब्दुर्रहमान और दुर्वेश खान से कहा कि तमाम रूसियों के हाथ पुष्ट पर बांध दिए जाएं। जब वो इस काम से फारिग हुए तो अली ने इर्द गिर्द तमाम जगहों की तलाशी लेने के लिए कहा। चार मुजाहिदीन से कहा कि मुमकिन है कि कुछ रूसी बचकर भाग गए हों, उनका पीछा किया जाए मगर ज्यादा दूर न जाया जाए। अली ने उनसे कहा कि अगर किसी के पास गोलियां खत्म हो गई हों तो जख्मी रूसियों के बचे हुए मैगजीन और क्लाशनकोफें ले ली जाएं। असलहा किसी मुजाहिद के पास भी न था, खाली बंदूकें थीं। अगर रूसियों को मालूम हो जाता तो वो कभी यूं गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश न करते। मुजाहिदीन ने आगे बढ़कर रूसियों से छीना हुआ असलहा लिया और भागने वाले रूसियों का पीछा करने चले गए। बम के फटने के साथ ही न सिर्फ रूसियों की गाड़ियों को आग लगी और टैंक तबाह हुए बल्कि जिस गाड़ी में गोला बारूद रखा हुआ था उसे भी आग लग गई और गोला बारूद भी सारे का सारा तबाह हो गया। कई रूसियों की लाशें टुकड़े टुकड़े होकर फजा में बिखर गईं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से ज्यादा रूसी मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जिनमें 30 की हालत नाजुक थी। अली और मुजाहिदीन ने बचा हुआ तमाम असलहा संभाल लिया। इतनी देर में दूसरे मुजाहिदीन भी 10 रूसियों को गिरफ्तार करके वापस ले आए। तमाम मुजाहिदीन ने इस फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली के सामने अब मसला ये था कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकला जाए, मगर गिरफ्तार शुदा रूसियों के साथ क्या सलूक किया जाए उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुजाहिदीन से मशवरा किया तो अब्दुर्रहमान और बूढ़े मुजाहिद ने कहा कि हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और न उन्हें छोड़ना दुरुस्त है, इसलिए सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम में कैदियों के साथ ऐसी सलूक की इजाज़त नहीं, हम मुकदमा चलाए बगैर इनको सजाए मौत कैसे दे सकते हैं। बूढ़ा बोला, ये मुजाहिदीन के साथ कोई कम जुल्म तो नहीं करते, ये जालिम रूसी तो मुजाहिदीन के हाथ पांव बांधकर खूंखार कुत्तों के आगे जिंदा डाल देते हैं। अगर जालिम रूसियों की तरह हम भी जुल्म करने लगें तो फिर इस्लाम और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरे ख्याल में हम उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें खुले मैदान में फेंक जाते हैं और फैसला अल्लाह पर छोड़ जाते हैं कि वो इन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारता है या फिर इन्हें नई जिंदगी अता करता है। अली ने कहा। मुजाहिदीन ने मामूली बहस के बाद अली की बात मान ली। अली और उसके साथी तमाम रूसियों को खुली जगह फेंक कर खुद आगे चल पड़े। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि दुश्मन के हवाई जहाज आदम के। अली और उसके साथी फौरन ओट में छिप गए। हुआ ये कि दुश्मन के जहाज़ों ने खुले मैदान में पड़े हुए रूसी फौजियों को मुजाहिदीन समझकर बमबारी शुरू कर दी। इतनी बमबारी हुई कि एक भी रूसी जिंदा न बच सका। जब जहाज़ वापस चले गए तो अली ने 2 मुजाहिदीन को भेजा कि ये
जाकर पता करके आओ रूसियों का क्या बना। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस आकर बताया कि तमाम रूसी मर चुके हैं और लाशें टुकड़े टुकड़े होकर दूर दूर तक बिखरी पड़ी हैं। ये सुनकर अली ने कहा, अल्लाह का इंतकाम बड़ा सख्त होता है। शायद हम उन्हें इस अजियत से न मार सकते जिस तरह उनके अपने साथियों ने बमबारी करके मारा, और वो सज़ा इस मौत से हज़ारों गुना ज़्यादा खौफनाक होगी जो ये लोग अब दोज़ख में जाकर भुगतेंगे। वहाँ उन्हें फरिश्ते भी नज़र आएंगे और खुदा की ताकत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। सब मुजाहिदीन ने एक दफ़ा फिर अल्लाह की मदद पर सजदा शुक्र अदा किया। इस वाक़े ने न सिर्फ मुजाहिदीन के अल्लाह ताला पर यकीन को मुस्तहकम किया बल्कि उनके जज्बे जिहाद और शौक़ शहादत को भी और बढ़ाया। मरकज़ से चले हुए ये 8वां दिन था। मुजाहिदीन पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में से गुजर रहे थे। ये मुजाहिदीन के ज़ेर कब्ज़ा इलाका था, इसलिए बेफिक्र होकर चले जा रहे थे कि पहाड़ी की एक छोटी सी घाटी में दरख्तों के घने झुंड में से आवाज़ आई, भाइयों ठहर जाओ। अली और उसके साथियों ने जो मुड़कर देखा तो 2 अफराद उन्हें रुकने का कह रहे थे। अली और उसके साथी रुक गए। वो दोनों अफराद उनके पास आए और बताया कि हमारे कमांडर साहब आपको बुला रहे हैं। सवाल जवाब के बाद जब अली को यकीन हो गया कि ये मुजाहिदीन ही के साथी हैं तो वो उनके साथ चल पड़े। तंग घाटी में दरख्तों की छाँव में 20 के करीब मुजाहिदीन अपनी चादरें ज़मीन पर बिछाए, कुछ बैठे और कुछ लेटे आराम कर रहे थे। उन्होंने ज्यों ही अली और उसके साथियों को देखा सब उठ खड़े हुए। सब ने अली और उसके साथियों का गले मिलकर इस्तकबाल किया। फिर बाहमी तारुफ हुआ। मुजाहिदीन के इस ग्रुप के कायम मुकाम कमांडर महमूद खान ने अली को बताया कि आगे रास्ता बंद है और इस रास्ते की हिफाजत के लिए मुजाहिदीन ने जो मरकज़ कायम कर रखा था उस पर कल दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। अली ने कहा, मगर मरकज़ पर दुश्मन का अचानक कब्जा कैसे हो गया? हमें रास्ते में मुजाहिदीन का एक काफिला मिला था जो 3 दिन पहले इसी इलाके से गुजर कर गया है। महमूद खान ने तफसील बताते हुए कहा, 3 दिन पहले ये मरकज़ हमारे कब्जे में था और मुजाहिदीन के जिस काफिले का आपने जिक्र किया है वो 3 दिन पहले सुबह हमारे ही मरकज़ से नाश्ता करके रवाना हुआ था। उनके जाने के कई घंटे बाद नमाज असर के वक्त अचानक दुश्मन के कई तैयारे आ गए और उन्होंने तबाहकुन बमबारी शुरू कर दी। पहाड़ पर हमारी 3 पोस्टें थीं और एक पोस्ट दूसरी तरफ नीचे अमन कोह में थी जिसमें हमारे कमांडर साहब रहते थे। 100 मुजाहिदीन इस मरकज़ पर मौजूद थे, 25 नीचे और 75 पहाड़ के ऊपर। पहाड़ पर ओलों की तरह रूसियों के बम गिर रहे थे। हमारी तरफ से 3 तैयारा तोपें भी बारूद उगल रही थीं। जहाज ऊंचाई पर थे, फिर भी हमने जल्द ही एक तैयारा गिरा लिया। घंटे के अंदर अंदर हमने दुश्मन के 3 हेलीकॉप्टर गिरा लिए। हमारे कई मुजाहिदीन शहीद और जख्मी हो चुके थे। बमों और रॉकेटों की बारिश में भी डटे रहे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। धमाके से फटने वाले बमों की बारिश तो रुक गई, मगर दुश्मन ने आखिरी दफ़ा ऐसे बम फेंके हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पहाड़ के दामन में वाक़ पोस्ट पर अपने कमांडर शेरदिल खान से रब्ता किया और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई। उन्होंने फ़ौरन पसपाई का हुक्म दिया। जहरीली गैस के बमों से बेशुमार मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे। हमने जख्मियों को संभाला और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए पीछे हटने लगे। अभी हम पहाड़ की निस्फ उतराई तक आए थे कि दुश्मन के हेलीकॉप्टरों की आवाज़ फिर सुनाई दी। उन्होंने कोई बमबारी न की। मेरा ख्याल है कि इन हेलीकॉप्टरों से कमांडर्स उतारे गए। हम 25 मुजाहिदीन के अलावा सिर्फ 10 जख्मी बचे और यहाँ पहुँचने में कामयाब हुए। जख्मियों को हमने 5 मुजाहिदीन के साथ पीछे हेडक्वार्टर भेज दिया है और हम पिछले 2 दिन से बगैर कुछ खाए पड़े हैं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे मरकज़ से कब मदद आती है। कमांडर महमूद खान ने बात ख़त्म की तो अली ने पूछा, कमांडर शेरदिल खान और उनके साथी मुजाहिदीन का क्या बना? कुछ मालूम नहीं, महमूद खान ने बताया। अली ने कमांडर महमूद खान से कहा कि पहले हम आपके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं, बाकी बातें फिर होंगी। अली के पास सामान खुर्दनोश काफ़ी मिक़दार में मौजूद था। सब मुजाहिदीन ने मिलकर खाना तैयार किया। खाना खा चुके तो अली ने महमूद खान से पूछा कि अब बताएं, पहाड़ कि दूसरी तरफ मुजाहिदीन के कितने मोर्चे थे और उनके पास कैसे हथियार थे। महमूद खान ने बताया कि कमांडर शेरदिल समेत 25 मुजाहिदीन वहां मौजूद थे। 2 गार पहाड़ के अंदर
खोदे गए थे। एक खेमा भी था। क्लाशनकोफों के अलावा सिर्फ एक मार्टर तोप और एक रॉकेट लॉन्चर मुजाहिदीन के पास था। अली ने मजीद पूछा कि हेडक्वार्टर से इमदाद कब तक पहुंचेगी, तो महमूद खान ने बताया कि अब तक इमदाद आ जानी चाहिए थी, मालूम नहीं देर क्यों हो रही है। अली खासी देर सोचता रहा, फिर बोला, आपको यहाँ फारिग नहीं बैठना चाहिए और दुश्मन से मरकज वापस लेने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। मुमकिन है कि हेडक्वार्टर में इधर आने के लिए मुजाहिदीन ही न हो। अगर आपने जवाबी हमला करने में देर की तो दुश्मन को पहाड़ पर मजबूत मोर्चे बनाने के लिए वक्त मिल जाएगा और फिर उस पर मुजाहिदीन का दोबारा कब्जा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुमकिन है शाम तक आपके लिए हेडक्वार्टर से भी मदद आ जाए। इतनी देर में आपको हमला करने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। मेरे तमाम साथी भी आपका साथ देंगे। तमाम मुजाहिदीन ने इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए अली को इस हमले के लिए अपना कमांडर तस्लीम कर लिया। अली ने अब्दुर्रहमान, महमूद खान और दूसरे मुजाहिदीन को अपने साथ लिया और दुश्मन की पोजीशनों का जायजा लेने चल पड़ा। वो रेंगते हुए और दरख्तों में छिपते हुए दुश्मन के करीब से करीब तर होने की कोशिश कर रहे थे। एक ऊंची जगह दरख्तों के झुंड में वो रुककर हालात का जायजा लेने लगे। अली ने दूरबीन लगाकर देखा, पहाड़ के ऊपर दुश्मन ने 5 चौकियां कायम कर ली थीं। अली ने दुश्मन की पोजीशनों का एक कागज पर नक्शा बनाया और जहन में उठने वाले सवालात महमूद खान से पूछे, क्योंकि वही इस इलाके को सही तौर पर जानता था। जब पहाड़ का जायजा मुकम्मल हो गया तो अली अपने साथियों के हमरा पहाड़ की दूसरी तरफ का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था, क्योंकि पहाड़ पर दुश्मन के फौजी मुसलसल गश्त कर रहे थे। बिल आखिर वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां से पहाड़ की दूसरी तरफ का मुकम्मल जायजा ले सकते थे। अली ने देखा कि पहाड़ के दामन में कई खेमे लगे हुए हैं और बेशुमार गाड़ियां और टैंक खड़े हैं। इसका मतलब था कि दुश्मन ने यहाँ भी कब्जा कर लिया है। शेरदिल खान और उसके साथी या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या फिर लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। अली ने इस जगह का नक्शा महमूद खान के मशवरे से मुकम्मल किया और फिर वो वापस आ गए। अली, अब्दुर्रहमान और महमूद खान अपने सामने नक्शा फैलाए तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। गौर व खौस के बाद अली ने कहा, अगर हमें हेडक्वार्टर से मदद मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से हेडक्वार्टर से मदद नहीं मिल पाती तो फिर भी हमला आज रात ही होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अपने मोर्चे मजबूत करने में मसरूफ है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।